हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कालिंगा भारती फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वीं रज महोत्सव इस वर्ष गुरुग्राम के सेक्टर 4 कम्युनिटी हॉल में भव्य रूप से आयोजित की जा रही है। यह आयोजन ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत और उत्तर भारत की रंग बिरंगी परंपराओं का एक जीवंत संगम होगा। इस समारोह में मुख्य सचिव श्री BK मोहापात्र, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित गुप्ता और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नौकरशाह और कॉरपोरेट हस्तियां शिरकत करेंगे। विशेष रूप से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी श्रद्धेय श्रीमती आरती सिंह राव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिन्हें एक युवा महिला नेता और नई पीढ़ी की नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे युवा महिलाओं की प्रेरणा स्रोत और पोस्टर वुमन ऑफ न्यू जनरेशन विमेन लीडरशिप हैं। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस उत्सव को और अधिक गरिमामय बना देगा। मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, पारंपरिक ओडिया लोक नृत्य और गीतों की रंगारंग झलकियाँ, खास ओडिया खानपान, राजा पिठा, रसाबली, पखाला, माछा झोल व अन्य प्रामाणिक व्यंजन, रज डोली, पान, झूले और लोक सजावट। रज पर्व की आत्मा को महसूस करिए। प्रतियोगिताएं सभी आयु वर्ग के लिए, फैंसी ड्रेस, भारतीय नेता थीम, चित्रकला, ओडिशा संस्कृति व श्री जगन्नाथ विषय पर, ओडिया लिपि लेखन, रंगोली, रजा कुमारी और रजा क्वीन, लकी ड्रा, सरप्राइज गिफ्ट्स और ढेर सारी मस्ती। रज महोत्सव रथ यात्रा के बाद ओडिशा का सबसे प्रमुख पर्व है, जो नारीत्व, प्रकृति और परंपरा का उत्सव है। यह पर्व हरियाणा और ओडिशा की संस्कृति को जोड़ने वाला पुल बनेगा, जहां विविधता में एकता और उत्सव में अपनापन दिखेगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित, पेशेवर और पर्यावरण के अनुकूल ढंग से आयोजित किया जाएगा, ताकि सभी समुदाय और आयु वर्ग के लोग मिलकर इस सांस्कृतिक उत्सव का आनंद ले सकें। तो आइए, जब गुरुग्राम झूलेगा, ओडिशा मुस्कुराएगा और नारी शक्ति गर्व से सर उठाएगी। सादर, टीम कालिंगा भारती फाउंडेशन। जय जगन्नाथ। So the whole objective of forming an organization is to create an inclusive culture. That was the reason why Kalinga Bharati Foundation formed 2 decades before. And the basic objective is to make a fusion of Odisha's culture with the culture of Haryana. In particular, the nearby states from where the people comes over here to work. So that was the reason why we have formed this organization, and we are working for the people from so many years. It's not only for a cultural program. We work in the field of health, education, empowerment. So later on, when we realized we should also do something for the women empowerment, that was the time we thought of, why not to come up with a program which is to celebrate the womanhood. So 7 years before, we come up with a program, the name is Raja. The Raja program is Odisha's second most celebrated program after Rath Yatra, wherein the woman is being empowered. They normally enjoy for completely 3 days. There is a cultural, lot of cultural programs, food, fun, etc. So we have tried to bring that culture into Haryana, where we are living, so that the people from Haryana can know our culture. At the same time, we can also know their culture. That is the reason why the program is very, very inclusive. It is being managed by the group of professionals, and we have focused into safety, security and sustainability. At the same time, to make the core of this program is having fun element. So the fun is through the lot of cultural activities, may it be song, may it be dance, and these songs and dances are not only from Odisha, it is from all across India, to bring the inclusivity culture. Similarly, the food, it comes up with the Odia food, because we need to promote that food as well. At the same time, we have the North Indian food and the South Indian food. At the same time, we have not forgotten our Odisha's Jhula. We say it as Dodi. Then Odisha's Pana, means you might be knowing the Pan. Okay, that is slightly different, but again that is how unity in diversity works. Similarly, the dance. When we talk about dance, all kind of inclusive dances will be there. People from across the country will be traveling. They will be doing the dancing. They will be bringing the cultural fusion into it. Okay. At the same time, we have also organized a lot of competitions, so that we can promote our kids, our women, and all category of people. And I must say, thanks
my heart feel of lot of gratitude to the members of the Kalinga Bharati Foundation who actually worked day and night to join the dots. These are like seeds. We the seeds will grow like a tree and will give the fruit that will be an inclusive fruit, and by doing so we are feeling that our kids and the kids who are growing with them, they can adapt each other and it will bring more brotherlyhood. Okay, that was the objective of coming up with this kind of programs. Jai Jagannath, Jai Masi. माता शीतला माता की जय। कलिंग भारती फाउंडेशन तरफ से 7वां रज महोत्सव, रज और कला महोत्सव बड़ी धूमधाम से गुड़गांव का पावन धरती पर बनाने जा रहे 14-15 जून 2025 शनिवार और इतवार का दिन बड़ी धूमधाम से ये पालन होगा गुड़गांव में। और ये दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा पर्व उड़ीसा का, बेसिकली उड़ीसा रज महोत्सव जैसे हरियाणा में तीज फेस्टिवल होता है, ऐसे उड़ीसा का रज महोत्सव है। लेडीज वुमेन जो एम्पावरमेंट है, लेडीज जो रहते हैं, और दिल्ली एनसीआर में 10 लाख से ज़्यादा उड़िया लोग रहते हैं, कल गुड़गांव में 1 लाख से भी ज़्यादा उड़िया लोग रहते हैं। हम लोग इतना दूर से मतलब 2000 किलोमीटर दूर से हम रह रहे, सारे लोग जा नहीं पा रहे, इसलिए हमारा कला संस्कृति का साथ साथ हरियाणा में रह रहे, हरियाणा का कला संस्कृति और भारत का कला संस्कृति को लेकर एक फ्यूजन सबको मिला कि विकसित भारत, विकसित उड़ीसा, विकसित हरियाणा कैसे ये होगा, और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे बढ़ेगा, नारी शक्ति को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इस दिन हरियाणा का जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर राव आरती सिंह हम मतलब 14 तारीख को आने के लिए स्वीकृति प्रदान किए, और हमारा हरियाणा का जो चीफ सेक्रेटरी थे पीके महापात्र जी जो डीसी रह चुके गुड़गांव सोनीपत का रेजिडेंस कमीशन, वो भी उस दिन आ रहे, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, और सबसे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता जी वो भी आ रहे हैं, और बहुत IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बुद्धिजीवी, हरियाणा का स्कूल का 250 से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश कई कलाकार इधर भाग ले रहे हैं, और इसमें कला संस्कृति उड़ीसा का खान पीने का साथ साथ इसमें हरियाणा का उत्तर भारत का भी खान पीने इसमें शामिल होगा। और आप लोग का माध्यम से हम उसको दुनिया को बताना चाहते हैं, आप लोग इसको इतना फैला दीजिए, सबको बोलिए शामिल हो, और हमें सबके सिक्योरिटी का भी बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। हमारा टीम पिछला 3 साल से इसको काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अक्षय सामल, कलिंग भारती फाउंडेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हमारा साथ सुधांशु जी है, देवप्रिय पात्र है, संग्राम पांडेय जी है, पूरा टीम है, और मैं सबको बधाई देता हूँ। आप लोग को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग आज हमारे साथ शामिल हुए। जय जगन्नाथ। क्या खास प्रोग्राम रहने वाला है सारे कार्यक्रम? उड़ीसा का ऐसा कौन सा फेस्टिवल रहेगा प्रोग्राम के जिसको विशेष रूप से उड़ीसा के लोग पसंद करें? देखिए, ये जो रज महोत्सव है, कला महोत्सव, रज महोत्सव जो हम बना रहे हैं, ये जैसे हरियाणा का तीज फेस्टिवल है, ऐसे ये उड़ीसा का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फंक्शन है आफ्टर रथ यात्रा। जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है तो सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा पर्व होता है, सभी धर्म का होता है, उड़ीसा का भी होता है, सबका जगन्नाथ सब जी का समस्त सभी का है। लेकिन ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बेसिकली वुमेन लेडीज़ का प्रोग्राम है। हमारे जैसे मैडम अभी बोली उड़िया भाषा में 3 दिन त्यौहार होता है, 14, 15, 16 या 13, 14 ये जून में एक टाइम में आता है। उस दिन ना पूरा स्कूल कॉलेज सब छुट्टी रहता है। उड़ीसा के लोग कोई नहीं मतलब अपना काम नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, सब गाना नया ड्रेस डालते, झूला झूलते, पिक्चर जाते, मतलब एंजॉय करते, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बहुत एंजॉय करते हैं। इसीलिए ये जो आप जो बोल रहे इधर हम जो कर रहे हैं, खास बात ये है हम लोग ना दूर 2000 किलोमीटर दूर से आए,
और हम लोग अपना संस्कृति वगैरह तो भूल नहीं सकते। साथ साथ हरियाणा का हम जहाँ रह रहे, हमारा बच्चे वगैरह ये पैदा हुए, ये भी रह रहे, धीरे धीरे ये लोग ना उड़िया भाषा भी भूल रहे, उड़िया संस्कृति भूल रहे, वो भी है। लेकिन हम दोनों को मिलकर मतलब ना जो फ्यूजन जैसे अभी सुधांशु जी बोले, सबको लेके साथ चलना, जैसे मतलब हरियाणा के कल्चर को भी, नॉर्थ इंडिया हिंदी कल्चर जो हरियाणा में भाषा उसको भी हम भूल नहीं सकते, कारण इधर हम रह रहे, उड़ीसा का अपना जो मदर लैंग्वेज उसको भी हम भूल नहीं सकते। इसीलिए हम ये जो कल्चर हम देखना चाहते हैं, जो अन्य अनेकता में एकता है। जैसे हरियाणा की जो भाषा उड़ीसा की नहीं, खान पीन सबको पता नहीं होता, उड़ीसा का भी उनको पता नहीं होता, राजस्थान का लोग जो आएंगे उनको भी पता नहीं होता, हरियाणा का मतलब कोई नॉर्थ ईस्ट का लोग भी आ रहे, कलाकार कुछ आ रहे, उनको भी पता नहीं होता। इसीलिए ना सबको एक प्लेटफॉर्म में सभी को खाना, ड्रेस, संस्कृति, हेरिटेज सबको बताना चाहिए। और इसमें और एक चीज़ हम ना जो छोटे छोटे बच्चे को एक अनुसंधान कार्यक्रम जो हिडन अनसंग हीरो जैसे बोलते हैं ना, बहुत टैलेंट है उड़ीसा के लोग है। अभी हम ना केवल उड़ीसा के लोग के लिए जो कर रहे हैं, अभी एकेडमी जो 90% से बच्चे 12th और 10th क्लास में पास आउट है जो हरियाणा दिल्ली एनसीआर में, उनको हम फेलिसिट कर अवार्ड दे रहे और मोटिवेट करा रहे। और आने वाला दिन में हम उसको पूरा सभी को भी जो बाकी जो सब लोग ना सारा कल्चर को लोग को भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब कुछ फ्री एंट्री है, सब लोग को आना चाहिए। और सब लोग इसमें जो कला संस्कृति जो भूल जाते हैं ये सब का है। और खाना पीने का बिल्कुल आइए, मीडिया भाई बहन में सबको हम मतलब इन्वाइट कर रहे हैं। अब बिल्कुल आप लोग तो हमेशा हर ये में आते हैं आप लोग को, और इस बार भी आएंगे। और ये सारा पत्रिका में जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी में उसको बहुत सारा मतलब रज महोत्सव हम ओडिशा गोटे बड़ पर्व जो कि 3 दिन झील मैंने लेडीज मैंने एंजॉय करती, स्पेशली रज पान खाती, से 3 दिन जाक किसी भी कम करेंगे। से जो रजर ओडिशार बड़ पर्व को आम हरियाणा से प्रेजेंट करूँ। धन्यवाद देव कलिंग भारती फाउंडेशन को, जे कि बहुत सुंदर भाव में ओडिशार फेस्टिवल को ये प्रेजेंट कर 2 दिन पर्यंत सब फन फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, विभिन्न प्रकार ओडिशार खाद्य से खाइबा मिल, से देखा मिले ओडिशार ओडिसी नृत्य, सब प्रकार हरियाणा नृत्य, राजस्थान, पंजाब सब प्रकार डांस हम, गीत हम, संगीत हम, भल विभिन्न प्रकार खाद्य भी खाइबा मिल। आई 3 दिन पर लास्ट दिन बसुमती स्नान हो जो रज फेस्टिवलटा ये स्पेशली ये वुमेनहुड सेलिब्रेशन। आउ 3 दिन बहुत एंजॉय करती झील मैंने लेडीज मैंने। ये भी कलिंग भारती बहुत ओडिशा बहुत बड़ बड़ सिंगर मैंने डांसर आसुँच। 3 दिन पर्यंत एठिकार आम ओडिशा लोक ता सहित हरियाणा लोक भी एंजॉय करेंगे। जगन्नाथ।